Today morning, what was it? I couldn't see. How to convince people to become vegan. Acha, 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 That's what we were discussing, right? acha. Yeah, yeah. No, no, actually, uh, it's a good topic. You all interact with it. Though I will not be able to join maybe beyond 5 minutes or so today, as I Mm-hmm. have guests around me and they are Okay, about to leave in an hour or two. okay, So, okay, okay, but since I got your link, so I just wanted to join for few minutes. okay, Anyway, okay. you start with that. Mm-hmm. Ay, baap re. Mm. So, guys, this morning, Dr. Goel was raising this concern that there is difficulties to explain people about veganism. So, any thought on that? How to explain and vegan? Pooja, are you aware of veganism? I've heard about it, like even quitting on milk products, if I'm not wrong, and just having like vegetables that you can say. Yeah, yeah, yeah. Do you understand why is it so? Because some people say, like, there are different beliefs, I believe, which is like, some people say that milk is still not healthy for us, as human, because it also causes some issues. I'm Mm-hmm. still not sure, but everyone has their own belief on it. Yeah, yeah. Because But I think even animals are polluted because of like us humans. We just, wherever we go, we tend to throw plastic or pollute things some or the other way. And that's how, even because, animals tend to eat, like cows. mm, I've seen cows eating the plastic itself. And that is unhealthy for them. And that their milk is coming towards us maybe because of that. mm. So a few things perhaps which can be looked into, and perhaps like just this moment, if you observe this moment, this particular moment, and after 5 minutes of our discussion, now onwards after 5 minutes, you will see change in the level of awareness within you, and you will also realize that the information that are being shared are already known by you, but just that you have not noticed it. So i I guess that you have witnessed the milking of cow in your life many times. Milking of cows. Yeah. So the cows are tied with a rope, and the calf is also tied with a rope, separated from each other. These all things are known to you. Not necessarily, malab, not exactly what you're saying, but yes, I have, because like on the road, I keep seeing like those people who have tabelas. I see them Yes, keeping the babies separate separated. from the Yeah, mothers. Yeah. yeah. So this is known to us, right? Like the glass of milk that is on our table, and the background of it is known to us, but we just choose to ignore it. So do you consider that separating mother and the child is natural? It's unnatural, right? And unnatural is very subtle word. It's cruel. It's cruel, right? So now, so far, we were discussing about the milk under the light of health. Under the light of health, you mentioned about the cow eating plastics, and the milk after consuming plastic, whatever is coming is unhealthy, all those things. Now, another perspective is
added to it. And some change in the awareness, do you see now? That the cruelty aspect was ignored at the first place, which is a very primary thing. Like nobody of us, no organism per se is cruel, actually, because cruelty takes a lot of energy, and we are actually designed to conserve energy. So cruelty is never loved by anyone, whosoever it is, who is committing the cruelty and who is the victim of cruelty. For both of the parties, it is not likable thing. So that way, it is not our food at all. Milk is the food for the baby in the womb. If it is my mother's milk but meant for my sister, it is not for me. That customized food it is. But we just take for granted. So the veganism, basic veganism aspect, basically we all are vegan, born vegan. This is a nomenclature that we put later on. So veganism, since this term itself is a new term for you, veganism is basically a concept based on cruelty and non-cruelty. So anything causing cruelty towards animal is to be looked at, because we are not structured, designed to be cruel. So this is how. Any thought, Binal, Rashi, Prajakta, Anju? Hi, Anju, ma'am. A quick thought that we are also animals. So veganism, even we fall under that cruelty in that sense. We are bearing the brunt of it by being non-vegan in that sense. Yes, that's true. और कल्याण भाई साहब, मुझे तो क्रुएल्टी का पता ही नहीं था। 3 महीने की फ्रूट डाइट के बाद पता चला मुझे। छोड़ दिया मिल्क प्रोडक्ट, बट सच में ये एक बहुत बड़ी अवेयरनेस थी मेरे लिए, तो बहुत ज्यादा। मैंने पता तो था एक्चुअली, बट हम देखते नहीं थे, सही कहा आंखें आपने। बंद करके रखते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक। तो जैसे पूजा आज शायद थोड़ा सोचेगी ना, पूजा इसके बारे में, तो उससे कुछ निकल के आ सकता है। तो यस, और बताइए अंजू मैम, कुछ टॉपिक। मुझे मेरा क्वेश्चन अगर लिया जा रहा है, तो मैं अभी भी बात करना चाहूंगी क्रेविंग्स को लेकर, कि क्रेविंग इन द सेंस कि अभी भी जैसे खाना सामने आता है तो और इतनी समझ है, आप मानो इतने सारे लोगों को समझा रहे हैं दिन रात, मतलब लोग ठीक हो रहे हैं, हम अपने ऊपर देख रहे हैं, हम जानते हैं अच्छी तरह, लेकिन फिर भी खाना खींचता है कई बार। तो उसके लिए काफी ज्यादा लगी हुई हूँ अपने ऊपर काम करने में। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम जैसे हो रही है। और मैं आपको ऑनेस्टली एडमिट करूं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, अगर मैंने एक बार थोड़ा सा खा लिया सपोज, तो फिर तो ऐसा हो जाता है, एक मेडनेस जैसे हो जाती है, और फिर वो रात को ही जाके खत्म होती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग के बाद कंट्रोल होता है फिर मेरा। कंट्रोल इन द सेंस कि वो तो समझ तो है ही कि फ्रूट ही खाने हैं, पूरी समझ है, इस बात में कोई डाउट ही नहीं है। तो उसके लिए क्या करूं मैं? सो इसमें ना थोड़ा कुछ सच्चाई को देखना पड़ेगा। पहला तो ये है कि अगर समझ होती तो ये परेशानी नहीं होती। हाँ, ये पहला एक झूठ हम खुद को कहते हैं, जो हमें समझ आ गया है फिर भी किए जा रहे हैं। तो ये पहला सच्चाई को देखना जरूरी है, जो समझ आई नहीं है तभी लालच है। अगर समझ आ जाती तो दोनों एक साथ टिकती नहीं है कभी भी। तो पहले इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मान लेने में या समझ लेने में, इसको भी समझ लेने में। ये समझ आई नहीं है अभी, ये अभी हम समझ रहे हैं और भी समझ रहे हैं। जितना गहराई में जाएंगे तो समझ आएगा, बट अभी तक समझ आई नहीं है। वो इंटेलेक्चुअल तौर पे जो लॉजिक समझना है, वो कुछ भी नहीं है, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये नंबर 1 है। नंबर 2 है लालच अपनी जगह, और लालच से छुटकारा मिलने का जो तड़प, वो अपनी जगह।
इसको समझिए। एक तो लालच, लालच आपका एक सेंसेशन आ रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, आप लालच के प्रति आपका एक घिन आ रहा है, एक हेट्रेड आ रहा है, जब मुझे लालच नहीं होना चाहिए। ये जो है ये एक अलग उपज है, अलग से आपके अंदर तैयार हो रहा है। दोनों में कोई जुड़ाव ये हम मानसिक तौर पे बनाते हैं। ये अलग से एक अलग लूप या दबाव या एनर्जी के ऊपर खपत, ये हम खुद अपने तरफ डालते हैं, जो एक हेट्रेट लाते हैं किसके प्रति, खुद के प्रति। उसका बेस क्या है ना, एक खुद पहले तो मैं बना के रखी हूं दिमाग में, जो मेरा इमेज ऐसा है, जो मैं तो इतना एक्टिविस्ट हूं, इतना फ्रूटरियन हूं वगैरह वगैरह, टैग तो हम ऐसे ही पहले लगा के रखे हैं, वो एक बोझ है। तो मुझे इमेज मेंटेन करना है जो मैं लालची नहीं हूं, पर मैं लालची, मुझ में लालच दिख गया, ये बड़ा शॉकिंग सा लगता है हमें। तो लालच एक अलग जगह है। लालच के अलावा ये सारे स्टोरीज हम फॉर्म करते हैं, खुद का एक इमेज बनाते हैं, उस इमेज मेंटेन करने के लिए एक मुशक्कत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं। तो इन द बार्गेन क्या हो रहा है, हम और भी एनर्जी खपत कर रहे हैं। लालच एक खपत है, उसके साथ साथ खुद का एक इमेज बनाए वो और एक खपत है। सारे तो एनर्जी के ऊपर ही दबाव डाल रहे हैं ना हम, हमारा एनर्जी लिमिटेड है। तो इससे इसका बेसिस क्या है, लालच आपका एक कल्पना का उपज है। ये समझ पा रहे हैं? कोई भी चीज अगर खाने का तो इजी एग्जांपल है, जो भी आप खाने के लिए बैठे लालच आ रहा है, वो तो एक्चुअली अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि जो चीज उसमें पड़ा हुआ है वो अट्रैक्टिव नहीं है। आपको बर्गर खाना है तो उसमें गेहूं है, आलू है, थोड़ा मसाला है, तेल है, वो अलग अलग आपके सामने परोसा जाए तो आप कुछ भी खाने के लिए तैयार नहीं रहोगे। तो यानी कि वो लालच जो बन रहा है वो एक बनावटी स्वाद के वजह से बन रहा है। ये तो इंटेलेक्चुअली समझ में आ जाता है। हाँ, ठीक है। इंटेलेक्चुअली ये भी समझ में आ जाता है जो लालच जो है ये कल्पना का उपज है, क्योंकि वो जो मिला के जो स्वाद बनाया गया है वो किस तरह से बनाया गया, वो कल्पना में पहले बनाया गया ना। तो उसके पीछे आइडिया है, वो अट्रैक्ट कर रही है हमें, क्योंकि चीजें तो अट्रैक्टिव नहीं है। चीजें अगर अट्रैक्टिव होती तो हम तो ऐसे ही गेहूं खाते कटोरी में भर के, नमक खाते कटोरी में भर के, वो सब तो खा नहीं पा रहे, क्योंकि वो चीजें बॉडीली डिजाइन नहीं है हमारे लिए, तो डिजाइंड ही नहीं है वो। तो हम किसके द्वारा वहां पर ड्रिवन हो रहे हैं ना, आइडिया द्वारा। जो आइडिया उसके पीछे है उसके द्वारा हम ड्रिवन हो रहे हैं। तो अभी आइडिया का क्या है, आइडिया अगर दिख जाए आइडिया ना, वो तुरंत खत्म हो जाता है, उसका इम्पैक्ट तुरंत खत्म हो जाता है, क्योंकि आइडिया का कोई अस्तित्व नहीं है। ये हमें पता है। ये आइडिया कहाँ, आइडिया दिखाइए तो अपना आइडिया कहाँ है, वो तो कहीं और है ना, मतलब फॉर्मलेस है, उसका कोई तो अस्तित्व ही नहीं है, ना स्टार्टिंग है ना एंड है। तो वो आइडिया आप जब तक सच मानोगे तब वो चिपका रहेगा। जब आपको ये दिख जाएगा कि ये सच नहीं है, ये आइडिया है, तो टिकेगा ही नहीं। तो फिर लालच टिकने का कोई सवाल ही नहीं है। लालच का एक खुद का मूवमेंट है, वो कल्पना के ऊपर पे बेस किया हुआ है, तो वो टिकेगा ही नहीं, वो अगर दिख जाए तो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, जो चीज अपने आप खत्म होने वाली है, जो चीज अपने आप खत्म होने वाली है, उसको एफर्ट लगाने का क्या जरूरत है हमें। समझ रहे हैं आप बात? वो रुक जाता है इस वजह से क्योंकि हम एफर्ट लगाते हैं। अच्छा, वो रुक जाता है, लालच आपको पसंद नहीं है, उस वजह से वो टिका हुआ है। अच्छा, लालच आपको पसंद नहीं है, उस वजह से टिका हुआ है। आप लालच को सिर्फ नापसंद का कोई जरूरत नहीं है, उसको हेट करने का कोई जरूरत नहीं है।
उसको खाली समझ लो ये काल्पनिक है, वो मैंने अपने आप 2-4 खत्म। दिन, जब आपसे पिछली बार मेरी बात हुई थी तो उसके बाद इट वर्क फॉर अ वीक, मतलब कि हम्म, वही ऐसे ही करती थी कि कुछ देखती थी ना तो उसको देखने की कोशिश करती थी उसके रियल फॉर्म में, कि हम्म, ये इन इन चीजों से मिलके बना है। हम्म। फिर उसके बाद तो 1 हफ्ते के बाद ऐसा हुआ कि अगर कभी ऐसे होता है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, और खा लिया तो फिर खा लिया, ऐसे वाली वो स्टेज आ जाती है, पता नहीं जैसे। हम्म। तो कई बार लगता है ये भी पता नहीं डिटॉक्स है क्या, कि अब निकल के खत्म होने वाला है या नहीं, क्या है। एक्चुअली तो यही है, ये एक्चुअली यही हो रहा है। आप हम्म। अगर खुद के तरफ देखो भी ना, आप पहले जिस फ्रीक्वेंसी में खाते थे अभी उसका फ्रीक्वेंसी बहुत घटा है। हाँ। तो लॉन्गिट्यूडिनली अगर अंजू बंसल का एक स्टोरी बनाया जाए तो 2 साल में दिखेगा जो हाँ अंजू बंसल तो अभी और लालच नहीं है। वही हो रहा है, वही हो रहा है। ये जो आप जो अभी डिस्कशन करने के लिए इंटरेस्टेड हो, ये सारे दर्शा रहा है जो आप एक्चुअली इसको समझने के लिए तैयार हो, समझना समझने के और जा रहे हो, वही मूवमेंट हो रहा है। हम्म। फैक्ट तो वही है, फिजिकल तौर पे वो धीरे धीरे घटते घटते ही जाएगा, बट हम्म। समझ के तौर पे जिस मोमेंट में आपको क्लैरिटी आ जाएगा एकदम, ये लालच कल्पना है, वो अपने आप जाने वाला है, मुझे एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। मतलब जो चीज अपने आप होने वाला है उसको फिर मैं करने के लिए क्यों उतावला हूं, ये हीलिंग तो जैसा ही फिर है। मैं बस आइडिया देखूं जब भी कुछ फूड आए मेरे सामने, तो मैं वो, मतलब क्या देखूं उसमें। देखने का कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, वही है, चेकलिस्ट कुछ नहीं होता। आप देखो ना, बस देखो उस पे। अच्छा अच्छा, हाँ वो डिस्कशन में हुआ था, ये चेक 1 2 3 स्टेप्स है, ऐसा ऐसा करके दिख नहीं सकता है, क्योंकि हर एक मोमेंट में ना दिखने का एंगल अलग होता है, दिखने का जो बेस होता है वो अलग है, तो सारा कुछ बदल बदल के होता है। तो आप चेकलिस्ट के द्वारा आप ड्रिवन हो ही नहीं सकते हो। ये पहले से आप चेकलिस्ट बना के गए, वो सिनारियो के साथ मैच ही नहीं कर रहा है। हम्म। जो आप स्ट्रैटेजी बना के गए हो उस सिचुएशन में वो स्ट्रैटेजी फिट ही नहीं बैठ रहा, तो आप क्या करोगे? उसीलिए ये पहले से प्री प्लान हो ही नहीं सकता है। खाली देखने की मनसा जो है वो जरूरत है, जब आप देखने के लिए रेडी हो कि नहीं। But I mean, just adding on to what यस। Anjuji says, I think for me, like, I mean, I've seen many people जो बहुत emotional eater है, तो at times वो दिमाग को है नहीं, ऐसा पता नहीं चलता कि ये खाना चाहिए कि नहीं, बस खाना देखे या झपट लिया। तो even how do you deal with that then, कि जब emotional eater हो, जैसे मेरे लिए, मेरे को sweets and coffee के बिना I can't stay without that, मेरे को रोज एक ही चाहिए ही होता है। सो वो मैं मतलब एट टाइम्स एब्सेंट माइंडेडली भी मैंने एक ही दिन में 2 बार कॉफी पी ली। आई यूजुअली ट्राई टू पुट वन, बट जब एब्सेंट माइंडेड होती हूँ या आई एम जस्ट स्ट्रेस्ड और समथिंग, मैं बिना सोचे समझे दूसरा कॉफी बना के बस पी लिया। बट देन हाउ डू यू कंट्रोल दैट? एब्सेंट माइंडेडनेस वाली भी बात नहीं है मेरे साथ, तो मतलब इतने ज्यादा दिन मैंने 45 डेज बिल्कुल प्लेन जैसे फ्रूट डाइट की है, कि कुछ इश्यूज नहीं थे। और फिर जैसे आप कह रहे हो अब इग्नोरेंस है, वो समझ है, लेकिन पता है फायदे दिखते हैं अपने ऊपर, वो फीलिंग अपनी पता है कि जब नेक्स्ट डे, जिस दिन आपने फ्रूट डाइट की होती है, नेक्स्ट डे इतना ज्यादा आप अच्छा फील करते हो। लेकिन फिर भी कभी कभी चीजें वो हो रही हैं जो, और अभी वो भी नहीं है मुझे, जैसे नफरत भी नहीं है कुक फूड से, बट हाँ जो आपने कहा ना, दिखता नहीं है वो, मतलब उस टाइम वो टेम्पटिंग ही दिखता है, मतलब वो ऐसे नहीं दिखता कि जैसे नहीं खाना चाहिए ऐसे वाला। अभी हम्म। दोबारा ज्यादा हो रहा है, तो ये पता नहीं मेरा नहीं, इमोशनल ये डिटॉक्स है। वही है जो पूजा ने जो बताई, इमोशनल ईटिंग, ये इमोशनल अच्छा। ईटिंग का ही एक एग्जाम्पल है, आप भी जो दे ओके। रहे हो। तो अभी क्या है, हमें ये समझना जरूरी है कि इमोशनल ईटिंग इज अ टेंडेंसी दैट वी हैव डेवलप्ड विद इन अस, अ ओके। नैक दैट वी हैव डेवलप्ड। ये हम्म। सिर्फ ईटिंग में लिमिटेड नहीं है, ये लाइफ के बहुत सारे एरियाज में ये चल रहा है। यानी कि जो हमारा जो समझ पेनिट्रेट करने का, देखने का, दृष्टि का जो पेनिट्रेशन है वो कंप्रोमाइज हो रखा है। हम ओके। चीजों को देख ही नहीं रहे हैं, जस्ट इमोशनली ड्रिवन हो रहे हैं।
एक अंदर एक सेंसेशन आ रहा कहीं कुछ और सोच से, बस वही सेंसेशन के बेसिस पे हम अंधाधुन काम किए जा रहे हैं। हम समझ के काम करना बंद कर चुके हैं। ये सिर्फ खाने के लिए एप्लीकेबल है ऐसा नहीं है, ये जीवन के बहुत सारे जगह आपको दिख जाएगा। तो द प्रॉब्लम दैट वी आर नाउ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज मच डीपर देन, इट इज नॉट लिमिटेड टू द ईटिंग, इट इज एक्सपैंडेड टू अदर एरियाज ऑफ लाइफ ऑल्सो। तो अगर हम देखने का आदत को ना समझे टू बिगिन विद, ये देखने का आदत कितना जरूरी है, उसमें समय का कुछ मतलब पाबंदी दोगे तो फिर दिखोगे नहीं, क्योंकि टाइम आपका दिमाग में चलेगा जो इसी टाइम के बीच बीच देखना है। तो देखने का आदत हर एक मोमेंट, राइट नाउ, राइट दिस मोमेंट ऑल्सो नीड्स योर ऑब्जर्वेशन। वो जब तक आपका आदत में ना कन्वर्ट हो जाए तब तक ये सॉर्ट नहीं होने वाला है। वो थोड़ा बहुत कभी कभार सॉर्ट आउट कुछ होगा, कभी सक्सेस दिखेगा, कभी फेलियर दिखेगा, ये स्टोरी चलते रहेगा। देखने का आदत, और ये जो हम अपने लिए लोड तैयार करते हैं बिकॉज ऑफ द इमेजिनेशन, ये जो आप बैड हैबिट का बात करो या इमोशनल ईटिंग का बात करो, ये सारे, एक सेकेंड, आयुषी, हाय आयुषी, हेलो। कर दो। हाँ हेलो। सो थोड़ा सा नॉइज आ रहा था, मैं आपको म्यूट करने वाला था। हाँ आप ऑलरेडी कर दिया, थैंक यू। सो ये जो हमारा जो नैक बनाते हैं, जैसे हैबिट का, ये हैबिट को लेके ही तो बात कर रहे हैं हम लोग। इमोशनल ईटिंग इज अ हैबिट दैट वी वुड लाइक टू गेट रीड ऑफ। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं इन जनरल। मतलब अपना अपना पर्सनल इशू से अभी नहीं देख के इन जनरल समझते हैं जो हाउ अ हैबिट गेट फॉर्म्ड, हाउ a habit in general gets formed. Habit है एक attractive कुछ behavior pattern जिसको हम appreciate करते हैं और अपना लेते हैं। यही है मतलब, फर्स्ट appreciation आता है हमारे तरफ उस behavior के प्रति। हाँ, ये वाला होगा तो बहुत, जैसे बच्चे स्मोकिंग करना स्टार्ट करते हैं एडोलेसेंस में, तो उनके लिए वो एक हीरोइक इमेज तैयार होता है। हाँ, अगर मैं स्मोक करूं तो मैं हीरो बन जाऊं, हाँ, तो मुझे भी स्मोक करना है, मुझे अपने आप को हीरो देखना है। ये अप्रिसिएशन का स्टोरी है, खुद को सुनाते हैं। तो इस अप्रिसिएशन में क्या है, सच्चाई दिखता नहीं है, जो वो जो चीज करने वाले हैं हम, वो एक अननेचुरल एक्टिविटी है, क्योंकि हम तब बंधे हुए हैं उस अप्रिसिएशन में। वो जो आंखों के लेंस लगा हुआ अप्रिसिएशन का, वो हमें रोक रही है फर्दर देखने के लिए। तो फिर हैबिट हमने पिकअप कर लिया, अप्रिसिएशन से ही चल रहा है वो। फिर कुछ दिन बाद जाके उसका सच्चाई थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है, थोड़ा थोड़ा समझने लगता है जैसे। फिर क्या करते हैं हम, अप्रिसिएशन के वजह से वो रुका हुआ था वो हैबिट, because of our appreciation that gets stuck, otherwise nothing stucks in this universe, nothing stucks, everything moves. अभी जब दिख गया जो ये नुकसानदायक है, तब क्या हुआ, हेट्रेड आ गया उसके प्रति। उसी एक्टिविटी को, उसी बिहेवियर को जिसको मैं अप्रिशिएट कर रहा था, उसको अभी हेट करने लगा। तो स्टोरी कुछ बदला नहीं, हमने अप्रिसिएशन का जो अड़ंगा लगा रहे थे इससे पहले, वो अभी वो कैसेट निकाल के ये वाला कैसेट डाल रहे हैं हेट्रेट का। तो जो सच्चाई देखने वाला जो एस्पेक्ट है, ये ओवरऑल डिप्राइव्ड है। स्टार्टिंग में भी डिप्राइव्ड था, अभी भी डिप्राइव्ड है। तो फिर वो तो रुका ही रहेगा, वो उसके पास एनर्जी नहीं है, क्योंकि हम जकड़े हुए हैं या तो अप्रिसिएशन से, नहीं तो हेट्रेट से। सच देखने का ताकत ही नहीं बचा है हमें। ये क्या समझ पा रहे हैं थोड़ा?
मतलब हमारा किसी भी काम के लिए इमोशनल जो वो है ना लव ना, मतलब जैसे एक इक्वानिमिटी की स्टेज होनी चाहिए, आई थिंक। हाँ, मतलब इक्वानिमिटी की स्टेज अगर ना हो तो हमें सच दिखेगा नहीं, ये है एस्पेक्ट। नहीं दिखेगा। होनी चाहिए हाँ, तो वो फिर एफर्ट आ जाएगा, हम फिर जोर लगाएंगे इक्वानिमस हाँ, रहने के लिए। हाँ, तो ये इक्वानिमिटी, स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी जो है वो बाई प्रोडक्ट है ऑफ इंक्वायरी। हाँ, जब हम हाँ, इंक्वायरिंग मोड में रहेंगे, इंक्वायरिंग मोड का क्या मतलब है, ये देखने का जो वर्ड यूज कर रहे थे हम, वही इंक्वायरी है, देखने का मतलब जो कोई भी स्टेज। चीज ना अच्छी है ना बुरी है, बस देखना है उसको, ये क्या है कैसे, मतलब जैसे एक डिटैच ऑब्जर्विंग उसे कह लीजिए। हाँ, क्योंकि देखिए, जितना ज्यादा आप चीजों को देखोगे उतना आपका क्लैरिटी आएगा, ये तो मैथमेटिक्स है। और ये ज्यादा देखना एक जर्नी है, ज्यादा देखना जर्नी है। क्या आप पेनिट्रेट करके अंदर जा रहे हो, अंदर जा रहे हो, अंदर जा रहे हो, और ये पेनिट्रेशन के टाइम में अगर कहीं आप रुक जाते हो, खुश हो जाते हो कोई चीज देख के, तो वो एक रुकावट है। मतलब अप्रिशिएट करने लगते हो या हेट करने लगते हो, तो ये जो आपका जर्नी शुरू हुआ था देखने की, वो रुक जाता है। साइकोलॉजिकली अगर आप समझे, साइकोलॉजिकल बैरियर्स है ये सारे, एप्रिसिएशन या हेट्रेड। इससे जो हमारा परसेप्टरी डेप्थ है वो घट जाता है, फिर हमें सच्चाई दिखेगा कैसे, ये जर्नी अफेक्टेड हो जाती है ना। तो ये अप्रिसिएशन, हेट्रेट, ये तरह तरह नाम से हम जानते हैं इसको, इसपे से बिलीफ और डिसबिलीफ भी शामिल है। हम जब भी कुछ चीज Okay, बिलीव करना स्टार्ट करते हैं। यस पूजा, यू वांट टू से मतलब जो समथिंग? sorry. हमारी, हाँ, कहो पूजा, आप बोलो। Yeah. हाँ, sorry. Actually मेरा I mean what thinking थोड़ा मेरा अलग डायरेक्शन में जा रहा है, लाइक जैसे आप बोल रहे हो अप्रिशिएट एंड डिसअप्रिशिएट। सो मेरी Correct. कहानी ये है कि मैं रेगुलर स्कूल 9th स्टैंडर्ड तक गई थी। और फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया, और फिर मैंने 10th और 12th ओपन स्कूलिंग से किया। ओके, ठीक है, तो ठीक जब है। तक मैं रेगुलर स्कूल में जाती थी, आई यूज्ड टू अप्रिशिएट कि ओके आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स, I can talk to people, I can meet new people, and that's something that, you know, like especially homeschooling concept, it's extremely new, like in India, and especially where the place I'm staying in. So जब तक मैं स्कूल जाती थी, आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई एम अ ब्राइट स्टूडेंट, पीपल कम एंड प्ले विथ मी, एंड यू नो एवरीवन जस्ट टॉक्स। बट देन जब उन लोग, मेरी सोसाइटी वालों को पता चला कि मैंने स्कूल छोड़ दिया है और मैं घर पे बैठ के पढ़ाई करती हूँ अपने इंटरेस्ट का, then they started disliking me, like, or hating me. Hating is like a really heavy word that I wouldn't like to use, but then it's like they disagreed with me and discontinued playing with me or being with me. And वो फिर एक चेंज लाना बहुत डिफिकल्ट मुझे पड़ा था, एंड नाउ आई हैव नो फ्रेंड्स। एंड मेरा अभी यू नो लाइक आई नोटिस एवरीथिंग कि यू नो बिकॉज ऑफ नो डिटेंशन पॉलिसी मुझे स्कूल में इधर 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 करके लेके गया टिल 9। एंड उसके बाद आई रियलाइज कि मतलब वो मैं कुछ एकेडमिक समझी ही नहीं थी, तो जो मैं समझी ही नहीं, मैं वो उसकी एग्जाम्स क्यों दूं जो जनरली मैं करते आ रही थी। और उसकी वजह से आफ्टर जब चीजें मुझे रियलाइज हुई, so I started disliking school, and now for me, like, I am finding it difficult to get into. I don't like, now I'm confused with my higher education. But now I wouldn't say ki I hated school. I really appreciate it for what it gave me, right? And even how the pandemic came, it was a major shift for so many people, no matter with their school or whatever that is. So this topic is a bit deeper topic, and we need to reopen this when we join back. I think a few seconds are left, and this is a non-subscribed Zoom plan. Okay. So we'll be joining back again using the same link. Hi Nandini, Alex, Dr. Goel, you guys need to rejoin using the same link, because we are rejoining on the same link again to continue our conversation. Yeah.